Assalamualaikum. Welcome to another episode of Straight Talk with Ramiz Mogulmi, in which we feature the interviews of eminent personalities of globe. And we have been speaking or interviewing recently also the eminent faces from Kashmir who have shined on the global radar. Today we have a doctor of par excellence, Sumaya Hamid, who has excelled in this ophthalmology field in a very great manner, and she has shined in diverse subjects of it, be it cataract related, be it retina. Sumaya Hamid ma'am, welcome to Straight Talk with Journalist Ramiz Mogulmi. Tell us a bit about your academic journey. So I did my basic MBBS graduation या medical जिसको आप बोलेंगे from GMC Mumbai, Grant Medical College Mumbai, and then I did my PG in ophthalmology from Government Medical College Srinagar. After that I have worked in various institutions all over the country. I have worked at SKIMS Medical College as a registrar. I have worked at Topiwala National Medical College in Mumbai, where I was trained in phacoemulsification or cataract surgery. And recently I have worked at Daljit Singh Eye Hospital, Amritsar as well, where I received my training in retina. Ma'am, tell our viewers what are the special tips to maintain a strong eyesight. Whatever maintains your body in a good, healthy way will help you, because your eyes are a part of your body, right? So eating well, exercising, taking adequate sleep, avoiding smoking or any other intoxicant are directly related to your eye health. Any special tips for maintaining a strong retina, or is it not in the hands of a human? No, this is a very good question. Retina related. देखिए, see, we have so many diabetic patients, hypertensive patients, जिनमें retina related problems बहुत common हो सकती है. So those patients, especially diabetics, hypertensives की अगर मैं बात करूँ तो they should get their retinas continuously, regularly examined, so that अगर कोई भी problem है, before this condition reaches the stage of vision loss, जहाँ से हम वापस नहीं ला सकते हैं उसको, तो हम उसको अरेस्ट करें, प्रोग्रेशन स्लो कर सके. So this is a very important thing that I wanted to put forward, और मैं लोगों को ये बताना चाहती थी, खासकर डायबिटिक्स को. डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत कॉमन है और एक स्टेज तक ही हम इसको रिवर्स कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं. अगर किसी का विजन चला गया कुछ हद तक ही हम उसको फिर वापस ला सकते हैं. सो डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव्स, एल्डरली पेशेंट्स, जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशंस है, दे शुड गेट देयर रेटिनास चेक्ड रेगुलरली. आपकी एक वास्ट एक्सपीरियंस भी है. आपको लगता है पीपल ऑफ कश्मीर टेक आई साइट और आई रिलेटेड प्रॉब्लम सीरियसली, कि वो लास्ट स्टेज पे आकर फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं? नहीं, सीरियसली तो लेते हैं, क्योंकि अब आप देखिए बहुत सालों से लोग अमृतसर जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं अपनी आँखों को लेके. ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है. आँखों की रोशनी, जब किसी को लगा आँखों की प्रॉब्लम है तो दे आर टेकिंग इट सीरियसली. थोड़ा सा मुझे लगता है एक मिसकम्युनिकेशन है, एक मिस इन्फॉर्मेशन है. पीपल फील करंटली, अगर 2024 की बात करें, कश्मीर वैली में ऑल सॉर्ट्स ऑफ आई रिलेटेड ट्रीटमेंट अवेलेबल है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी. अब कोई ज़रूरत नहीं है कश्मीर के पेशेंट को बाहर जाके अपनी आँखें. Next question was rightly on this. From your talk, I could guess you are currently practicing in a prestigious Paras hospital. How beneficial it's now proving to the patients, especially related to eye health? Like I said, अब आज के सिनेरियो में हम 2024 की ही बात करेंगे, और फॉर पास्ट 5-8 साल से अब गवर्नमेंट ने भी अपने इंस्टीट्यूशंस को बहुत डेवलप किया है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अच्छी लेवल के ऑफ्थमोलॉजिस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास. और अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस नाउ. सो एक पेशेंट को बाहर जाने की ज़रूरत अब नहीं है. कश्मीर से बाहर जाके आँखों का A से लेके Z तक ट्रीटमेंट, it is available in Kashmir. No, your MBBS was from Kashmir or any foreign country? No, it was from GMC Mumbai. Okay. I appeared in the entrance over there and I got selected. Okay, and great. then yes. So how do you see the ophthalmology field in Kashmir? Are we having enough professionals to tackle the people's diseases? Yes,
एंड वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, इट इज़ एट पार विद पीपल आउटसाइड। नाउ पीपल आर गोइंग आउटसाइड एंड गेटिंग ट्रेंड। जो मेजर इंस्टीट्यूट्स है, अरविंद है, एल वी प्रसाद है, देर आर सो मेनी ऑफ्थमोलॉजिस्ट हु आर ट्रेंड फ्रॉम देयर। सो यहाँ पे अब टैलेंट की, स्किल की या नॉलेज की कोई कमी नहीं। What was your reason for going towards the ophthalmology field? क्योंकि डॉक्टरी में भी काफ़ी ज़्यादा है, गायनी है, चाइल्ड है, पीडियाट्रिक्स है, कार्डियो है, तो योर रीज़न फॉर? माई रीज़न, अगर इफ आई एम रियली फ्रैंक, जो हर लड़की का ऑफ्थमोलॉजी में होता है कि क्लिनिकल ब्रांच है, नाइट्स उतनी ज़्यादा नहीं है, इट्स नॉट एज हेक्टिक एज गायनी एंड मेडिसिन। प्लस ड्यूरिंग MBBS मुझे एक लाइकिंग डेवलप हो गई थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू अ सर्जिकल ब्रांच। मुझे ये अच्छी लगी थी, एक क्लिनिकल ओरिएंटेड ब्रांच है, एक सर्जिकल ब्रांच है, प्लस एट द सेम टाइम इट वॉज नॉट वेरी डिमांडिंग, ऑल्सो डिमांडिंग इन द सेंस जैसे गायनी, पीडियाट्रिक्स, राउंड द क्लॉक जो, हाँ, सो इट वॉज नॉट दैट इज वाई आई चोज ऑफ्थेल्मोलॉजी। Would it be fair to say that cataract हो या pink eye related diseases हो, they are now becoming very common in Kashmir? देखिए, कैटरैक्ट जो है ना वो एक एज रिलेटेड चेंज है। आपके जैसे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे ही आपके आंखों का लेंस भी सफ़ेद होता है। कॉमन नहीं हो रहा है, डायग्नोज ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है हमारे पास, हर जगह जगह पे ऑफ्थमोलॉजिस्ट है, ऑफ्थेल्मिक सेटअप्स है, सो डायग्नोज मोर हो रहा है। अब वहाँ तक नहीं पहुँचता इंसान के टोटली ब्लाइंड हो गया तब जाके। देर आर कुछ है जो बैकवर्ड एरियाज़ है, फार फ्लंग एरियाज़, वहाँ में भी है ऐसे पेशेंट्स भी। बट येस, नाउ एक्सेसिबिलिटी टू ऑफ्थेल्मिक केयर इज़ बेटर। इट इज़ नॉट लाइक कि ये ज़्यादा हो रहा है। Also so many children are facing with eye problems, some from the birth, some at a very young age. तो उनके पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? सी, एक बर्थ, एक इंस्टीट्यूशनल बर्थ जहाँ हॉस्पिटल में बर्थ होती है, वहाँ बच्चे का एक बेसिक चेकअप हो जाता है, ठीक है। उसमें मोस्टली अगर उनकी आँख में जो आँख का पुतली होता है अंदर से, इट शुड बी ब्लैक। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की पुतली ब्लैक नहीं है, इट इज़ वाइट, ठीक है। वन थिंग इज़ दैट। या अगर बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है, बच्चा प्रीमेच्योर है, उसको रहते हैं, हाँ जी, ऐसे स्क्वेंट तो फिर एज के साथ साथ माँ बाप को समझ आ ही जाता है। आई एम सेइंग फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ कुछ चीज़ें हैं जो हमें जो हमारे बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, जो हमारा हॉस्पिटल में डिलीवरी कराता है और वो बच्चे को अटेंड करता है, उसने देखनी है कि नहीं आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसको आंखों के डॉक्टर के पास भी ले जाओ। बच्चा प्रीमेच्योर है या उसकी आंखों में अंदर सफ़ेदी है या आंख खोल नहीं रहा है या इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, सो इमीडिएटली फिर एज के साथ साथ अगर पेरेंट्स को लगता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पेरेंट्स को लगता है कि हम स्क्विंट शायर पर ना, तो कुछ लोगों का ऐसा ख्याल होता है कमज़ोरी ठीक नो, ऐसा नहीं है। स्क्विंट का सबसे बेस्ट इलाज जो है वो बचपन में होता है, ठीक है। बचपन से ही आपको उसका इलाज कराना। अगर आपके बच्चे को स्क्विंट है किसी भी तरह का, इमीडिएटली उसको एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ले जाओ और उसका इवैल्यूएशन, ये कमज़ोरी नहीं है, ये अपने आप से ठीक नहीं होगा। और अब हमारे पास जो है गैजेट्स, स्क्रीन कहाँ पे, स्क्रीन टाइम मोबाइल पे जो बच्चे रहते हैं, यस, बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि अब एक स्कूल में भी स्क्रीन इंट्रोड्यूस होता है, होमवर्क बच्चों का फ़ोन पे आता है। बट अगर बच्चे को स्क्विंट है, उसको रिफ्रैक्टिव एरर है, तो उसका हमें स्क्रीन टाइम बहुत कम करना है। यस, वी हैव टू चेक हमने उसको, क्योंकि आप अडल्ट हो, आपका काम अगर है किसी बैंक में काम करते हो या किसी और, यू हैव टू रन योर फैमिली, आपको अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन बच्चों को हम क्यों स्क्रीन दें व्हेन वी हैव अदर ऑप्शंस, है ना। लोगों की तरफ से भी एक क्वेश्चन आया था, वो उन्होंने कहा था कि सुमैया मैम को ये पूछेगा, कभी ये हमारे में रहता है घरों में गाजर खाओ, एग योग खाओ, ये आई के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, तो क्या ऐसी फूड्स को रिसर्च बैक करती है? Yes, that is true. Anything that is red and yellow in color naturally has certain ingredients, pigments in them that are beneficial to eyes. Yes. So आप वो चीज़ें जो कुदरती तौर पे लाल है, येलो है, ऑरेंज है, वो खाएंगे तो it will help your eyes. That's true. We had also seen in recent times eye flu भी काफ़ी बढ़ा था, तो what were the reasons of it? ये जैसे नॉर्मल फ्लू नहीं होता, वायरल इन्फेक्शन होता है, एक से दूसरे को लग जाता है। That is why it is not nothing to be worried about, nothing to get hyper about. एक को हो गया, दूसरे को लग गया, एक सीजनल कंडीशन है।
हैं, जैसे बीच में सीजन में जुकाम नहीं एक को हो जाता है फिर सबको घर में जुकाम हो जाता है, दिस इज द सेम थिंग। वायरस है, वायरस अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है, एक दूसरे को लगता है, फिर इवेंचुअली हम लोगों में एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, देन वी ओवरकम इट। Be it retina related surgeries or cataract or any other eye problem, do we have now in the Kashmir every sort of infrastructure? Yes, this is what I was talking about, everything, retina, advanced corneal treatment, कैटरैक्ट में सारी एडवांसमेंट्स जो है वो अब कश्मीर में अवेलेबल में। आज के डेट में मुझे नहीं लगता ज़रूरत है यहाँ के पेशेंट को बाहर जाके अपनी आंखों का इलाज कराने की। जो बीच में एक टॉक आई थी पिंक आई रिलेटेड, उसके बारे में क्या कहेंगे आपकी, वो भी बढ़ रहा है? पिंक आई इज़ एन इन्फेक्शन, इट्स अ मोस्टली कॉमनली एक वायरल इन्फेक्शन है। ये कभी किसी सीज़न में हो जाता है क्योंकि एक दूसरे के साथ बैठने से ड्रॉपलेट्स से फैलता है, तो एक टाइम आता है जब बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाता है, बट देन इट सबसाइड्स ऑन इट ओन। It is not related to gadgets, it's not related to our lifestyle. मनी इन कश्मीर जिसमें डॉक्टर्स को भी शिकायत रहती है, जेनवन रहती है, व्हेन यू प्रिस्क्राइब शीशा देती हो तो लगाने की आदत नहीं है, तो कितना मुज़र है फिर वो फॉलो ना करना? हाँ, ऑफ कोर्स अगर हमने किसी को चश्मा प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ओवर प्रिस्क्राइब भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ज़रूरत नहीं है तो ना करें प्रिस्क्राइब, अगर प्रिस्क्राइब किया देन यू हैव टू वेयर इट। ये आपकी आंखों के लिए ये अच्छा है, इससे किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ फॉर योर ओन आइज़। जो पेशेंट जिसको मैंने चश्मा दिया है उसको उससे साफ दिखता है, तो इट्स फॉर हिज बेटरमेंट ऑफ हिज विजन एंड बेटरमेंट ऑफ हिज लाइफ। दूसरे को क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अपना नुकसान कर रहे हैं जो लोग ये चश्मा नहीं पहन रहे हैं। What would be your message to the masses? My message, take away message will be कि आप रेगुलरली अपनी आंखों का चेकअप कराएं, ठीक है? अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है उसको प्लीज़ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं एंड मेक इट अ हैबिट। जैसे आपकी एज में कोई है, साल में दो साल में एक बार चेकअप कराएं। थोड़ी ओल्डर एज में 50-60s में है तो एक रेगुलरली साल में एक चेकअप कराएं। सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट जो टिप है जो मैं दूंगी किसी को अपनी आंखों की हेल्थ के लिए, डोंट टेक इट लाइटली, गो फॉर एन आई चेकअप। हर जगह ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है, एक थोड़ा सा टाइम निकाले और अपनी आंखों के लिए अपना एक चेकअप कराए। रेगुलर आई चेकअप्स इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड रिकमेंड। किसी विटामिन को आप खासकर रिकमेंड करेंगे फॉर? Vitamin A is very good for eyes, vitamin D is very good for eyes, E is very good for eyes. Omega-3 fatty acids जो होते हैं, those are very good for eyes. Now, World Women Day is also approaching. A lot of young girls who might be seeing you in this interview and want to pursue ophthalmology field, especially the girls, our young girls. तो उनको क्या कहेंगे आप? Why not? Of course. There is nothing wrong. Of course people are going. और अब देखिए हमारे कश्मीर में ज़्यादा लड़कियाँ ही हैं जो ऑफ्थल्मोलॉजी कर रही हैं। सो हमारी लड़कियाँ बहुत ही टैलेंटेड है, दे आर अप एंड कमिंग, दे आर गोइंग टू प्लेसेस बाहर साउथ इंडिया में जाके फेलोशिप्स करके वापस आ रही हैं। सो येस, इट्स अ गुड ब्रांच, यू शुड टेक इट अप. My last question would be, now you are in the past, you have served in before this also in several prestigious institutions of the country. So how is the present stint going on? Alhamdulillah, everything is fine. I could not thank Allah Taala more. Everything is going on fine. Paris में हमारा department अभी नया है. It's not fully equipped yet, but we are working towards it. But so far so good. Thanks a lot, ma'am. Thank you. So डॉक्टर सुमैया हमीद से हमने बात की तो इन्होंने आई रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स पे रोशनी डाली एंड वी विल बी आल्सो डिस्टर्बिंग मैम फ्रॉम टाइम टू टाइम टू टॉक ऑन सेवरल जो आपके इश्यूज आएंगे हमारे पास उन पे बात करेंगे मैम के साथ. थैंक्स अ लॉट. Thank you so much. वस्सलाम.